That if you come forward and get proper kind of treatment, you're almost able to live a normal life. So that is the message that we want to go across. लोगों को जगाना है, कैंसर को हराना है, लोगों को जगाएंगे, कैंसर को हराएंगे, लोगों को जगाना है, को जगाएंगे, कैंसर को हराएंगे, कैंसर को हराना है, लोगों को जगाएंगे, कैंसर को हराएंगे, लोगों को जगाना है, कैंसर को हराना है। कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है तो गौर फरमाएं।选错。All the religions is just use access on behalf of Thank you very much. She is the patron of this event along with Blue Horn 2022 and Pink Avatar 2022. She is published on Apology in Indian context. She has received Best Awards in ACOS 2015 and ACI SICON 2015. She is the fellow. The body, it has malignant potential. Then only that growth would be malignant or cancerous. Now, what for all kinds of treatment? Kusum has been having her husband's. Shia to Principal Government Medical College Srinagar, Dr. Masood and Ma'am, please. without him this event wouldn't happen. First, she has great skills. This girl deserves a huge round of applause. It's not an easy task to be in your youth, to get married and get diagnosed in 4 months of your marriage with the breast cancer, which is multicentric and requires removal of the breast. She has stood this so very bravely. In fact, I want to take caregivers also to come. I think Ishfaq is here. I would request Ishfaq to come. Her husband, who has like a rock beside her, supporting her in It's a very emotional for both of us. It was a very tough time for her, and it was a very tough decision for me at that point of time, but she had faith and we could do it together. She's here. They have fought it really very well. I'm so sorry because it's whenever I see her, I become very emotional. I feel very touched, all of my patients. It takes a lot of courage to come onto the stage, to come and speak up about your disease, speak about your journey, speak about the issues that and especially in the societies which are conservative and for women. I tell you, most of our women suffer because one, it's a conservative society. They don't come out and discuss their problems. The second thing is that majority of them, irrespective of being independent financially or empowered, they still have to have their male family members, whether it's a brother, emotions, your finances, and then take out time to get these people to the hospital. And cancer treatments are like 6 months, 7 months, 8 months, or a year.
It takes a lot of courage of these patients and the families as well, because the families are suffering at the same time. I want you to give a huge round of applause to all the caregivers out there, because that is what they deserve. Causes, the subtle signs and symptoms of breast cancer, and how can we reduce the risk. That's why we have gathered over here. But unfortunately, if I ask everybody to come and sit and understand those factors, it's very difficult to keep you gathered and focused. So we make this whole event as infotainment, so that you are also involved and interested, and then you read, you prepare the placards, the banners, the pieces of art that you've done, so that you understand why this theme. Cancers, I have to be very brief and very quick now, because we are running short of the time, and the dignitaries have their meetings to attend, and we have to complete all the segments of the event. So we are discussing cancers, because cancer is a new age epidemic, and we are spending hoping 1.16 trillion US dollars every year on this disease, 30 to 50% of which is basically preventable. And that's why we have gathered here. Because they were not able to get better treatment even with those lakhs of rupees and whatever savings they had in their life. So please understand why it is important to know about the subtle signs and get detected earlier and stay alert. We currently are having 5 crore people who have suffered with this disease and are survivors in the last 5 years. Now, the very important fact that I want you to remember is that cancers are conquerable. If you don't have a solution to any problem, there is no fun discussing it. So we are here, we have gathered to discuss the solution to this problem. And the first step towards that is creating awareness. You're walking around, because every time you walk with your phones in your hand, it gets connected and disconnected 90 times every second. So it's a huge amount of the radiation at that point of time. If your phones are having very low charge, don't talk on them. They again are emitting huge amount of the radiation. These are very preventable things, because we have 1.5-year-old kids now who are handed over these phones, and parents don't understand what are we causing. If your Wi-Fi systems running in your homes, please switch them off before going off to sleep. Don't let your kids roam around when it is on. Chemicals, now there are a lot of chemicals in your environment that can cause asbestos, nickel, cadmium, zinc and coal tar. You'll see renovations, road links and all on and off here and there. That's a very strong carcinogen. Please understand that is somebody changing dye industries or exposed to any kind of soot or into these renovations and reconstructions of the road links and all. They are all exposed to that. कैंसर पेशेंट हूँ, सर्वाइवर। ये ज़्यादा डरावना नहीं है। सब कहते हैं इससे मर जाते हैं, लेकिन अगर वक्त पे इलाज हो इसका सही तरीके से, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा देगा तो ठीक होगा। और मैं ज़्यादा बहुत शुक्रगुजार हूँ शबनम बशीर का। उन्होंने मुझे इलाज भी किया और उसके बावजूद काउंसलिंग भी की कि ये कोई ज़्यादा मसला नहीं है, लड़ के दिखाओ। इसलिए मैंने उसकी लड़ शुरू किया, लड़ना उसके कैंसर के साथ, वरना मैं मर गई थी पहले सुन के ही। इसलिए यही है, इससे लड़ना है, झेलना है, न कि मरना है, बल्कि सही टाइम पे इलाज करवाना है। अक्टूबर है जिसको हम इंटरनेशनल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे की तरह मनाते हैं, और यूआईसीसी की तरफ से वैसे, और ये पूरा ही महीना जो है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। इट्स सेलिब्रेटेड एज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। ऑल्दो हमारा ये मानना है कि जो ये अवेयरनेस है हमारी, वो कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए किसी एक दिन में, किसी एक हफ्ते में, या इसके लिए कोई डेट डेजिग्नेट नहीं होनी चाहिए। बट एज वी सेलिब्रेट ऑल अदर डेज, वी सेलिब्रेट दैट, ताकि हम एम्फसाइज करें इसकी इम्पोर्टेंस। और ये हम लोगों ने इधर, मैंने ये कैंसर अवेयरनेस एनुअल इवेंट बनाया है। आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन। ये हमारे जो एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया है, एसोसिएशन ऑफ जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, हमारा जो डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म है, हमारे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो है वो भी हमारी हेल्प करती हैं। हाँ, कई बार उनके साथ करते हैं। इस बार हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, वो आगे आए हैं। उनके बच्चों ने पूरा 1 महीना लगा के जो है बहुत सारी हमारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्ट के पीसेस बनाए हैं, और वो सारे जो उनके आर्ट के पीसेस हैं वो हैं डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को। देखिए, ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप एक इवेंट करते हैं और आप उनको किसी टॉक के लिए बुलाते हैं, तो वो इतना इम्बाइब नहीं कर पाते हैं जब तक वो एंगेज नहीं हो, इन्वॉल्व नहीं हो। तो मुद्दा इस इवेंट का यही है कि इसको इंफरटेनमेंट बनाए, ताकि बच्चे इधर आए। जब वो 1 महीना लगाएंगे इन सारी चीजों की तैयारियों में, आप समझें तो उन्होंने कितना पढ़ा होगा, बैकड्रॉप में रिसर्च करी होगी, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हासिल करी और फिर उसको उतारा कागज पर।
वो चाहे स्कल्पचरिंग करी उन्होंने या चाहे आर्ट के पीसेस बनाए, तो उसमें जितना उन्होंने पेपर में जब आप कुछ उतारते हैं तो इट इज विद ऑल योर हार्ट, तो उन्होंने कितना इम्बाइब किया इसमें। आप लोग आए हैं, आप हमारी मदद करते हैं हमेशा इस न्यूज को जो है और इस बेसिकली इस मैसेज को आगे बढ़ाने में। तो आप इन पीसेस को जब देखेंगे, आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे, तो जो अगला बंदा भी देखेगा उसको भी लगेगा कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना कोई टैबू नहीं है। we have to come out of that cocoon। हमें शन करना चाहिए वो शाइंग अवे, और हमें आके एकदम से सामने आके इसके बारे में बात करनी चाहिए, लोगों को अलर्ट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, उनको सटल साइंस एंड सिम्टम्स बताने चाहिए हमारी औरतों को, ताकि उनको कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो अपनी बीमारी के बारे में आगे आके बात करने के लिए। इसीलिए हमने कैंसर सर्वाइवर्स भी रखे हैं। देखिए कैंसर जो है न्यू एज एपिडेमिक बन चुका है अभी, और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी कहें तो ये नंबर 1 कैंसर किलर है अभी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में औरतों के। तो एक तो 2 इंसिडेंट्स भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है हमारे खाने पीने में, रहन सहन में, पोल्यूशन है, रेडिएशन है, स्ट्रेस है, उस सब की वजह से। और दूसरा ये है कि थोड़ी सी जो अवेयरनेस बढ़ रही है उससे जो हम पिकअप रेट्स भी थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो क्यूमुलेटिव इंक्रीज हो रहा है इंसिडेंट्स में। और जो नंबर्स अभी देखिए हमारी जो कैंसर रजिस्ट्रीज हैं वो पूरी तरह से जो टैप नहीं कर पाती हैं सारी पेशेंट्स को, तो ऑलमोस्ट 1/3 ही होता है, अंडर एस्टिमेशन ही होता है नंबर्स का। तब भी बात करें तो 23 लाख लोग ग्लोबली हर साल ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होते हैं। वो सिनेरियो ये है कि 23 लाख लोग हर साल इसमें जो है इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। और हमारे मुल्क में ही हम 2.2 लाख का हमारा है आंकड़ा, जो कि हम लोगों की रजिस्ट्री टैप कर रही हैं। तो अगर हम जो कैंसर रजिस्ट्रीज इंटरनेशनल उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि ये 1/3 एक्चुअल नंबर था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 5 से 6 लाख हमारी जो औरतें हैं वो इस बीमारी का शिकार हो रही हैं हर साल हमारे मुल्क में। और कई एक स्टडीज आई हैं जो कैंसर रजिस्ट्री जो हमारी कश्मीर की है, स्टेट रजिस्ट्री है, रीजनल रजिस्ट्री है, उनके जो बाहर आए हैं फिगर्स, उसमें से एक स्टडी ऐसी थी जो कह रहे थे कि हम ऑलमोस्ट 15 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हर रोज रजिस्टर कर रहे हैं अपनी रजिस्ट्रीज में, विच इज अ ह्यूज नंबर। सो वी आर टेक्निकली सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। तो हर लिहाज से हम लोगों को बहुत ज्यादा आगाही की जरूरत है, अवेयर करने की जरूरत है लोगों को। जब तक उनको बताएंगे नहीं सटल साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, उनको समझ नहीं आएगा। वो हमेशा औरतें हमारे पास में आती हैं, 60% लोग जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं 3rd और 4th स्टेज में। तो हम बताएं जो हमारी दो डिकेड की जो मेहनत है हमारी डीएस्केलेशन की, टारगेटेड थेरेपीज की, रोबोटिक्स की, नोवेल सारी जो हमारी ट्रीटमेंट्स हैं कैंसर की, उनसे हमें कितना फायदा हो रहा है। जब हमारे पास अभी भी 60% औरतें जो है वो स्टेज 3 स्टेज 4 में आएंगी, जबकि इसका सर्वाइवल सिर्फ 28 से 40% है। और यही लेडीज अगर अवेयर हों अपने साइंस एंड सटल सिम्टम्स के लिए, और इनको पता हो कि कोई टैबू नहीं, हम बात कर सकते हैं, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और स्टेज 1 में डिटेक्ट हो तो अप टू 100%, 90 to 100% इसका सर्वाइवल रेट है। कश्मीर में जी, जो हमारी स्टेट रजिस्ट्री है, जो हमारी रीजनल रजिस्ट्री है, उसमें भी नंबर्स बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, इट इज ऑलमोस्ट इन द सेम सिंक विद द होल नेशन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये है कि हमारे जो हैं वर्स्ट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स ज्यादा है। जो अगर वेस्टर्न पॉपुलेशन को जो कैंसर 50 इयर्स के एज के बाद में होता है, 50 साल के एज के बाद में होता है, हमारी पॉपुलेशन को 10 साल पहले ये स्ट्राइक करता है। और हमें ज्यादा जो है वर्स्ट प्रोग्नोस्टिक फीचर्स हैं, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा हो रहे हैं, यंग एज ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा हो रहा है जो कि 40-45 साल की उम्र से पहले है। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रोबस्ट है नहीं, हमारी औरतें शर्माती भी हैं जाने से भी, स्क्रीनिंग से, डायग्नोसिस से, और फीमेल सर्जन की भी कमी है। तो कंजर्वेटिव सोसाइटीज में ये एक और मसला बन जाता है कि वो आगे आके अपने एग्जामिनेशंस नहीं करवा पाते। सबसे बड़ा जो रिस्क है वो जेंडर है इसको लेके। हालांकि हैविंग सेड दैट 99% जो होंगे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स वो फीमेल्स होंगी, लेकिन 1% जो है वो मर्दों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर जो है। 1% पेशेंट्स जो है मर्द भी होते हैं, स्पेशली वो फीमेल्स जो वो फैमिलीज से जिनमें BRCA1 BRCA2 जीन पॉजिटिविटी होती है, तो उसमें प्रोस्टेटिक और ब्रेस्ट कैंसर दोनों जो है मर्दों को ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ये प्रोग्राम जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कैंसर अवेयरनेस मेगा इवेंट है जो एनुअल बनाया है हमने, क्योंकि अक्टूबर को पिंकटोबर कहते हैं। पिंक रिबन जो होती है वो होती है एक निशानी जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की होती है। तो ये मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह मनाया जाता है। एंड आज जो है स्पेसिफिकली 19 अक्टूबर है, जिसको इंटरनेशनल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे कहते हैं। तो खुसूसन हमने इस दिन के लिए रखा था ये, पर ये यहाँ पे ही नहीं थमेगा, ये एनुअल इवेंट है हमारा, हर साल इंशाल्लाह होता रहेगा। जबकि हमारा मानना है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए कोई एक दिन मुनक्कद नहीं होता, कोई एक महीना मुनक्कद नहीं होता, ये पूरे साल चलना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने एज फॉर्मेलिटी एक डेडिकेट करते हैं एक दिन भी इसको।
अब हमारा ये करने का मुद्दा ये है कि जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर्स हैं वो ऑन द राइज तो हैं ही, नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, पर सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हमारे 60% ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट जो हैं वो स्टेज 3 स्टेज 4 में आ रहे हैं, क्योंकि हमारी औरतों को पता नहीं है कि सटल साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं इस कैंसर के, क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। उनको ये डर लगा रहता है कि शायद उनका जो है ब्रेस्ट काटने की जरूरत ना पड़े, कीमोथेरेपी से उनके बाल हमेशा के लिए ना जाए। तो ये सारी जो मिथ्स हमें बस्ट करनी है, उनको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, और ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए यूथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है, क्योंकि हम यूथ को ये भी समझा सकते हैं कि 30 से 50% कैंसर जो है वो प्रिवेंटेबल है और कैसे प्रिवेंट किए जा सकते हैं। वो यही, जैसा कि मैं कह रही थी कि पिंक रिबन जो है वो होती है सिंबल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और ये अक्टूबर मनाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, तो इस अक्टूबर को इसीलिए पिंक टॉबर कहा जाता है। इंशाल्लाह देखिए, कहीं से तो शुरुआत हमने करनी है। हम चले थे अकेले ही जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, तो लोग जुड़ते जा रहे हैं इस मिशन के साथ में। हमारे नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी, अभी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो जब ये मैसेज बाहर जाएगी, हम सेंसिटाइज करेंगे लोगों को कि इतना मुश्किल नहीं है कैंसर के बारे में बात करना, तो और ज्यादा नंबर्स बढ़ते जाएंगे, और हम शहर से गांव की तरफ, पेरिफेरीज की तरफ इंशाल्लाह लेके जाएंगे ये सब, कि ज्यादा से ज्यादा लोग शमूलियत करें ऐसे इवेंट्स में, और जो हम इसमें बातें समझाते हैं, सिखाते हैं, उन बातों को वो आगे बढ़ाएं। ये इधर ही नहीं रुकना चाहिए, एक स्नोबॉल इफेक्ट होना चाहिए। हर बच्चा, हर यूथ जो इधर हमारे पास में आता है, कोई इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, उस इन्फॉर्मेशन को उसको आगे बढ़ाना है, एक जगह रोके नहीं रखना है। वही हमारा जो है मुद्दा होता है, टू एजुकेट द एजुकेटेड पीपल सो दैट जस्ट डजंट स्टॉप हियर।